Hello guys, welcome to Clarity for Sure. Hope you guys are doing well and welcome to another session of SIDBI examination of 2025. So in this session we will cover a very important part of our SIDBI syllabus, that is credit risk assessment. Yes, this is our topic of the day, credit risk assessment, right? So as you can see here, this topic is also there in our SIDBI syllabus as well, and we will try to understand this topic with the help of our top 10 MCQs, multiple choice question, right? So we will take the help of our top 10 multiple choice question in order to understand this topic in a more effective manner, right? So let's start the session here. Our first question is, which of the following is not considered an off balance sheet exposure, that is OBAC? Is it bank guarantee, letter of credit, undrawn loan commitment, term loan or derivative contract? These are our 5 options and you guys have to tell me which of the following is not considered as OBAC, that is off balance sheet exposure. What will be the correct answer of this question? Is it A, B, C, D or E? First of all, what do you mean by balance sheet? Basically, this is an financial statement of the company which includes assets and liabilities of the company, also the equity share by the shareholders on a specific time, right? So this is the definition of balance sheet. So this question is talking about off balance sheet. Off बैलेंस शीट मतलब जो बैलेंस शीट में इंक्लूडेड नहीं है, जो बैलेंस शीट के बाहर, ऑफ मतलब क्या हुआ, जो बाहर, ठीक है। तो उनमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑफ बैलेंस शीट नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि बैंक, 4 जो ऑप्शंस है वो सिमिलर टाइप के, ठीक है। बैंक गारंटी एक ही तरह के ऑप्शंस है, ध्यान से देखिएगा। गारंटी, बैंक की गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, अनड्रॉन लोन कमिटमेंट, टर्म लोन, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उससे पहले ये जान लीजिए कि एक्चुअली में ऑफ बैलेंस शीट होता गया है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता गया है। एक्चुअली these also include the assets and liabilities of the companies, but they do not appear in the balance sheet of the company, right? So that's why they are called off balance sheet exposure. मतलब वो asset and liability तो है, but they are not included in the balance sheet of the company. So this question is all about identifying the one who is in the balance sheet of the company, right? सो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं वो चीज़ दिखा रहा था कि अगर 4 ऑप्शन जो है वो सिमिलर टाइप के, बैंक गारंटी, ठीक है, गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, अनड्रॉन लोन कमिटमेंट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, these are the 4 options which are similar types, and these must not be included in, obviously not be included in the balance sheet of the companies, right? एक ही वो कंपोनेंट है जो बैलेंस शीट में होता है, वो है टर्म लोन। दे आर कंसिडर्ड एज एसेट्स ऑफ द बैंक्स। अब एक बात बताइए, बैंक्स की जो सबसे बड़ी एसेट्स क्या है? उसका लोन जो उन्होंने मार्केट में दिया हुआ है, ठीक है, और बदले में जो इंटरेस्ट आ रहे, दैट इज द अर्निंग ऑफ द बैंक, ठीक है। तो लोन विल बी कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट एसेट ऑफ द बैंक्स। सो दिस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ द बैंक, राइट। सो इसको छोड़ के बाकी का जो 4 है, दे आर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, विच मीन्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सो करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर डी, टर्म लोन, ठीक है। ऑप्शन से ही आप फिगर आउट कर सकते थे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन सिमिलर टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the standardized approach under Basel norms, an unrated corporate exposure typically attract a risk weight of what percent? 25%, 50%, 75%, 100% or 150%, right? Standardized approach. Basel norms क्या होते हैं? This is an international banking regulation which obliged bank to maintain a certain amount of capital in order to avoid the unforeseen circumstances like the financial crisis or the financial shocks, right?
सो इस अप्रोच के अंडर जो है आरबीआई, इस अप्रोच के अंडर जो है टोटल 4, इस बेसल नॉर्म्स के अंडर जो है आरबीआई ने टोटल 4 अप्रोच को रखा है, जिनमें से एक जो है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बात हो रही, और बाकी का जो है यू कैन गो थ्रू आवर सिडबीज क्रैश कोर्स, उसमें जो उसके जो सेशंस है उसमें क्लियरली ये इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया गया। तो जिन्होंने नहीं देखा यू कैन गो थ्रू द पोर्टल एंड वॉच दिस वीडियो, राइट। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच अंडर बेसल नॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें जो है उसमें से एक अप्रोच जो है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होता है, उसी के बारे में क्वेश्चन है कि इन दिस अप्रोच एन अनरेटेड कॉर्पोरेट एक्सपोजर, ठीक है। जब भी बैंक्स किसी को लोन देती है, ठीक है, कुछ भी सेक्टर को लोन दे रही, तो जैसे कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ लोन्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्चुअली लोन जो है एसेट है किसके लिए, बैंक्स के लिए, तो कुछ एसेट उसके ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क एसेट होते हैं, मतलब हाई रिस्क लोन, जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स को दी जाने वाली लोन्स है वो हाई रिस्क लोन्स होती है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स को दी जाने वाली लोन्स होती है वो सिक्योर्ड लोन्स होती है, मतलब लो रिस्क लोन्स होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अनरेटेड कॉर्पोरेट एक्सपोजर, एक अनरेटेड कॉर्पोरेट कंपनी को अगर सपोज लोन देती है तो टिपिकली इट विल अट्रैक्ट रिस्क वेट ऑफ व्हाट परसेंट, मतलब उसमें कितना रिस्क कवर होगा, तो ऑब्वियसली उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है लोन्स देने को, तो दैट विल बी 100%। 100%, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100% सबसे ज़्यादा रिस्क है प्राइवेट, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट रहता तो उस पर कम होता, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 100%, वो भी अनरेटेड, अनरेटेड, दैट हैज नॉट बीन रेटेड सो फार, ठीक है। तो बाकी का 3 अप्रोच भी हम लोग देख लेते हैं, वो है क्या, ठीक है। व्हाट आर द अदर 3 अप्रोचेज ऑफ बेसल नॉर्म्स, यहाँ पे एज यू कैन सी RBI assigns 100% risk weight to unrated corporate exposure under SACR, ठीक है। अप्रोचेस टू क्रेडिट रिस्क बेसल 2 and 3 नॉर्म्स। अप्रोच पहला अप्रोच क्या था, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ऐसे बैंक्स यूज एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग्स, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग्स का बैंक हेल्प लेता है इन ऑर्डर टू असाइन रिस्क वेट टू द एसेट, जो कि लोन है उसका, ठीक है, उसको रिस्क वेट को असाइन करने के लिए बैंक जो है एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग्स की मदद लेती है। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, FIRB। बैंक्स एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, दैट इज PD, अदर इनपुट्स आर प्रोवाइडेड बाय RBI। बैंक जो है एस्टिमेट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, बाकी का जो इनपुट्स है वो प्रोवाइड करती है RBI। एडवांस्ड इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, AIRB। Banks estimates PD, that is probability of loss, loss given default, exposure at default and maturity। इस पे भी हम लोग का आगे क्वेश्चन है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। आउटपुट फ्लोर, मिनिमम कुशन रूल, मिनिमम कितना % ऑफ कुशन उसमें रखना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट दिस क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच पैरामीटर इन 7C फ्रेमवर्क, 7C फ्रेमवर्क के अंडर जो है कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो एसेस करेगा इंटरनल कंट्रोल्स, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क ऑफ बोरोवर्स। ऑप्शंस आर कैपिटल, कंडीशंस, कोलेटरल, कंट्रोल और कैरेक्टर। अमंग दिस 7C फ्रेमवर्क, इनमें से जो फ्रेमवर्क दी हुई है उनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो एसेस करेगा इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क ऑफ बोरोवर। करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी व्हाट, डी और सी? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल्स को कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है इसमें जो कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो एसेस करेगा? ऑब्वियसली कंट्रोल, पहले ही तो आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनल कंट्रोल। उसके अलावा गवर्नेंस और कंप्लायंस रिस्क ऑफ द बोरोवर को भी ये पैरामीटर एसेस करती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड लॉस,
लॉस होने की संभावना इन क्रेडिट रिस्क इज कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला? यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. द ऑप्शंस आर पीडी इंटू एडी इंटू कोलेटरल वैल्यू और एलजीडी इंटू एम इंटू पीडी, पीडी इंटू एलजीडी इंटू एईडी ईएडी और पीडी इंटू एलजीडी इंटू ईएडी. Sorry, the signs are interchanged by each other, I guess. So PD into EAD into collateral value is the first option. Second is LGD into M into PD, PD into LGD into EAD और PD प्लस, यहाँ पे प्लस है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस है यहाँ इंटू है, ठीक है, प्लस LGD प्लस EAD और PD into LGD डिवाइडेड बाय EAD. These are our options. करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर इसमें होगा PD, दैट इज प्रोजेक्टेड लॉस इंटू LGD इंटू EAD. ऑप्शन नंबर सी. देखते हैं कैसे. एक्सपेक्टेड लॉस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस मतलब लॉस होने की संभावना हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो इसी फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है. PD का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू एलजीडी. एलजीडी मतलब क्या हुआ? लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू ईएडी, दैट इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट. तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग एक्सपेक्टेड लॉस का पता लगा सकते हैं. इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था कि जो पिछला जो ये था, ठीक है, अप्रोचेस था, अप्रोचेस टू मेजर क्रेडिट रिस्क अंडर बेसल 2 and 3 नॉर्म्स, उसके अंडर एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच AIRB में जो है बैंक्स एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, पीडी जो है बैंक कैलकुलेट करता है और बाकी का इनपुट जो है प्रोवाइडेड बाय द RBI, फाउंडेशनल इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, दैट इज FIRB. और इसमें क्या होता है? बैंक एस्टिमेट PD, लॉस गिवन बाय डिफॉल्ट LGD, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट EAD एंड मैच्योरिटी, राइट. सो इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था. सो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, PD इंटू LGD इंटू EAD. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इन RBI स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, RBI का जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होता है, क्लासिफिकेशन एंड अकाउंट ओवरड्यू. अगर अकाउंट में जो है अकाउंट का जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ, कितने दिनों तक? 61 to 90 डेज इज टैग्ड एज, मतलब लोन का जो पेमेंट है, जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, वो ओवरड्यू कितने दिनों के लिए? 61 to 90 डेज के लिए. तो वो इनमें से किस कैटेगरी में जाना चाहिए अंडर द RBI स्पेशल मेंशन अकाउंट? द ऑप्शंस हियर आर SMA 0, SMA 1, SMA 2, or it will be converted as non-performing asset, or it will be considered as special category asset. What will be the correct answer of this question? The correct answer of this question will be option number C, SMA 2. ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के अंडर अगर पेमेंट जो है ओवरड्यू है 0 to 30 डेज के लिए, ठीक है, 30 डेज के लिए, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर SMA 0, SMA 1 के लिए 31 to 60 डेज, SMA 2 के लिए 61 to 90 डेज. यहाँ क्या पूछा है? 61 to 90 डेज का पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर विल बी SMA 2. ठीक है, आफ्टर दैट इट विल बी कन्वर्टेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट. स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. राइट, स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA क्लासिफिकेशन कैटेगराइज लोन अकाउंट्स दैट शो साइन ऑफ पोटेंशियल नॉन परफॉर्मिंग एसेट. मतलब ऐसे लोन अकाउंट जो कि पोटेंशियल होते हैं कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तब्दील होने के, तो दैट वेयर कैटेगराइज्ड एज SMA, दैट इज special mention account. The classification is based on how long the principal or interest payment are overdue. Classification कैसे की जाती है? कितने लंबे समय के लिए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अभी तक जमा नहीं किया गया. SMA 0 के अंदर 1 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, SMA 1, SMA 2 के अंदर 61 to 90 डेज. दिस वाज आवर
करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, which should be developed tool is an IT based framework for rating exposure up to 200 lakh। 200 लाख तक के कौन सा ऐसा सिडबी डेवलप टूल है, एआई टूल है और आईटी टूल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल है, ठीक है, जिससे फॉर रेट विच इज हेल्प टू रेटिंग एक्सपोजर अप टू 200 लाख। इज इट RAM, दैट इज रैम, स्मार्ट, फिट, रैंक, कार्ड और SMERA। दीज आर आवर 5 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? You guys tell me in the comment box what will be the correct answer of this question. Is it RAM, Smart, Fit, Rank, CART or SMERA? The correct answer of this question will be what? CART, Credit Assessment Rating Tool। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब फुल फॉर्म होना चाहिए इसका। क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, सॉरी क्रेडिट असेसमेंट रिस्क टूल। लेट्स सी क्या फुल फॉर्म है इसका। दिस इज बेसिकली एन सॉफ्टवेयर, राइट, सॉफ्टवेयर। क्रेडिट स्टैंड फॉर क्रेडिट, सॉरी रिस्क नहीं है, अप्रेजल, कार्ट, क्रेडिट रिस्क अप्रेजल रेटिंग टूल। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्ट एंड दिस इज एन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट एनालाइजेज द क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब लोन देने की, ग्राहक की लोन वापस चुका पाने की क्षमता फॉर लोन एप्लीकेंट्स एंड सजेस्ट, और उसे सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस द इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू द रिस्क रेटिंग, और उस रिस्क रेटिंग के हिसाब से उसकी क्या परसेंट होने चाहिए उस लोन की वो सजेस्ट करता है। दिस रिड्यूसेस टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेसिंग लोन प्रपोजल एंड इंश्योर्स फास्टर अप्रूवल। दिस रिड्यूसेस टर्न अराउंड टाइम मतलब जो मैनुअली क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने की जो प्रक्रिया है उसको वो अवॉइड करता है, और जो प्रोसेस है अप्रूवल तक का उसको ये फास्ट करता है। दिस इज बेसिकली एन सॉफ्टवेयर, इट स्टैंड्स फॉर क्रेडिट अप्रेजल एंड रेटिंग टूल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, कार्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अंडर बेसल 3 नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। बेसल 3, बेसल नॉर्म्स हमने देख लिया, ठीक है। बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो के अंडर लोन्स पास ड्यूज फॉर मोर देन 90 डेज, लोन्स पास ड्यूज कितने 90 से ज्यादा दिनों के लिए रिक्वायर एन ASF फैक्टर ऑफ व्हाट परसेंट? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस आर 0%, 50%, 85%, 100% और 15%. What will be the correct answer of this question? Correct answer here will be 100%. Option number D. Right. देखते हैं कैसे। As you can see here, ठीक है, past due loans require full stable funding in NSFR calculation. Net stable funding ratio में जो है past due loans require full stable funding, पूरी funding की जरूरत पड़ती है। और NSFR होता क्या है? It is a banking regulation. It is an banking regulation designed to ensure banks maintain a stable funding profile. Bank maintain a stable funding profile over a longer time horizon. It requires banks to hold a minimum, एक minimum amount of stable funding hold करने को recommend करता है to cover their long term asset, to cover their long term asset, preventing excessive reliance on short term funding that could lead to liquidity crisis, that could lead to liquidity crisis. ठीक है, शॉर्ट टर्म्स क्या हुए लोन के बैंक्स के एस्पेक्ट में? शॉर्ट टर्म्स क्या हुए? जो जैसे FD है या RD है जो 365 दिन से कम या उसके बराबर में की गई हो तो वो बेसिकली शॉर्ट टर्म कंसिडर की जाएगी, और 2 साल 3 साल से ज़्यादा वाली जो FD या RDs होंगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन लॉन्ग टर्म, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी 100%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डॉक्यूमेंट इन MSME क्रेडिट अप्रेजल, MSME क्रेडिट अप्रेजल में कौन सी डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट्स करती है कैश इनफ्लोज
आउटफ्लोज एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट है एमएसएमई क्रेडिट अप्रेजल में जो कि प्रोजेक्ट करती है कैश इनफ्लोज, आउटफ्लोज और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। जीएसटी रिटर्न, सीएमए रिपोर्ट, उद्यम सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। आप बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। विच डॉक्यूमेंट इन एमएसएमई क्रेडिट अप्रेजल प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज, आउटफ्लोज एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? रोज बिजनेसेस को चलाने के लिए डेली जो पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर उद्यम सर्टिफिकेट, सीएमए रिपोर्ट क्या होगा? सीएमए रिपोर्ट। ठीक है, उद्यम सर्टिफिकेट क्या होता है? बेसिकली एक कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो जाती है एज एमएसएमई थ्रू उद्यम पोर्टल, ठीक है, उद्यम पोर्टल, तो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है उद्यम सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू गेट द आइडेंटिफिकेशन, लीगल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनी एज एन एमएसएमई, ताकि वो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स और सब्सिडीज की फायदा उठा पाए, राइट। सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट एन करेक्ट ऑप्शन, सो करेक्ट आंसर हियर विल बी सीएमए सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर बी। सीएमए सर्टिफिकेट होता क्या वो देख लेते हैं हम लोग, राइट। सो सीएमए सर्टिफिकेट, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट रिपोर्ट, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट रिपोर्ट, बेसिकली इट कंटेन्स स्ट्रक्चर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी स्ट्रक्चर सेट होती है, एंड प्रोजेक्शन, राइट, एज वेल एज प्रोजेक्शन सबमिटेड बाय द एमएसएमई बोरोवर। एमएसएमई जिसको लोन चाहिए होता है, एमएसएमई कंपनी की जो बोरोवर होते हैं, ठीक है, एमएसएमई बोरोवर टू द बैंक, टू द लेंडर बैंक, राइट। क्या होता है बेसिकली? इट कंटेन्स स्ट्रक्चर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्ट्रक्चर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोपोजल्स, प्रोजेक्शंस होती है जो कि सबमिट की जाती है किसके द्वारा? एमएसएमई बोरोवर के द्वारा टू द बैंक्स, ठीक है, दैट इज द क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और उसके थ्रू जो है प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि कैश इनफ्लोज कंपनी की क्या है, आउटफ्लोज एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की क्या है, उससे सारा ब्यौरा जो है कंपनी का सामने आ जाता है टू द बैंक्स, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अंडर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के अंडर, ठीक है, हेयर कट्स आर अप्लाइड टू कोलेटरल वैल्यू, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड्स, पीडी एस्टिमेट्स, लोन टेन्योर और कैपिटल एडवोकेसी रेशियो। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होगा? क्रेडिट देने का जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन बोलते हैं। और उसके अंडर जो है हेयर कट्स, हेयर कट्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसे एक लेंडर, जैसे एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है और इसे एक लोन चाहिए, ठीक है, इस पर्सन को लोन चाहिए, तो इसने अपना कुछ कोलेटरल या फिर क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी, ठीक है, कोलेटरल को ही सिक्योरिटी बोलते हैं, सिक्योरिटी को कोलेटरल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सिक्योरिटी इसके पास, बैंक के पास जमा कराया है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा? एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए उस सिक्योरिटी का जो अमाउंट होगा, मार्केट रेट होगा, उससे भी कुछ परसेंट कट कर देगा, डिवैल्यू कर देगा उसको, मतलब उसका वैल्यूएशन कम कर देगा, ताकि एक्स्ट्रा कुशनिंग मिल सके बैंक को इन ऑर्डर टू रिस्क मिटिगेट, मतलब रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुशनिंग मिल सके। होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि जैसे गवर्नमेंट को भी दी जाने वाली लोन्स कुछ हाई रिस्क नहीं होती, दे आर लो रिस्क, ठीक है, लो रिस्क लोन्स, बट उनमें भी कुछ एक्स्ट्रा कुशन लेके चलना पड़ता है बैंक्स को, ताकि इन केस ऑफ डिफॉल्ट जो है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कुशन रहे। तो जो सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, जो सिक्योरिटीज होती है उसमें जो है कुछ उसका जो वैल्यू है कुछ कम कर दिया जाता है, उसे ही हम लोग हेयर कट बोलते हैं, राइट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेयर कट।
सो इसमें पूछ रहा है कि क्रेडिट रिस्क एसेस मिटिगेशन में हेयर कट्स अप्लाइड किन में होता है। तो अभी मैंने बताया कि सिक्योरिटीज कोलैटरल मतलब जो गिरवी में रखा जाता है जैसे सिक्योरिटीज, ठीक है, उसका वैल्यू डिवैल्यू कर दिया जाता है उसको, मतलब उसका वैल्यूएशन कम कर दिया जाता है। तो ये किस में अप्लाई होता है? ऑब्वियसली कोलैटरल में, कोलैटरल वैल्यू में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोलैटरल वैल्यू में अप्लाई होता है, राइट। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ haircuts, right, as far as the credit risk mitigation is concerned. Next and the last question, last but not the least, the main purpose of credit risk grading. Credit risk grading का main purpose जो है MSME lending में क्या है? This is the question. To decide audit frequency only, or to determine tax liability, or to set loan eligibility, pricing and monitoring frequency, or to track GST filling dates or approve collateral valuation. So क्रेडिट रिस्क ग्रेडिंग जो MSME में होती है, क्रेडिट रिस्क को ग्रेड करना मतलब क्रेडिट के रिस्क को ग्रेड करना जो MSME में होती है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या? ऑब्वियसली जो लोन का एलिजिबिलिटी, प्राइसिंग एंड मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी को सेट करना, दैट इज द प्राइमरी एंड द मेन पर्पस ऑफ क्रेडिट रिस्क ग्रेडिंग एज फार एज द MSME सेक्टर इज concerned, right? So this was again the very simple question. So that's it for the session, right? That's it for the session, and there is our SIDBI course. Those who have not enrolled yet, please do enroll because there are very few days left as far as phase 1 examination of SIDBI is concerned. So this is our SIDBI Achievers crash course, right? You can go through you can buy this course by going through our website, that is www.c4scourses.in. So that's it for the session, that's it for the video. If you like the video, please hit the like button, subscribe our YouTube channel, follow us on Telegram and Instagram as well for daily updates. Thank you so much.